आज का हमारा लेक्चर लेसन नंबर 15 है। इसमें जो टॉपिक जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं द री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश मिडल इंग्लिश पीरियड, मतलब मिडल इंग्लिश पीरियड की दोबारा एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई थी। मतलब लॉस ऑफ नॉर्मंडे हुआ तो उसमें क्या क्या चेंजिंग हुई और लॉस नॉर्मंडे को कैसे हुआ वो बताना चाह रहे थे। तो जो टॉपिक है 71 चेंज आफ्टर 1200 एंड लॉस ऑफ नॉर्मंडे। The change in the condition after led to the establishment during the period of 12 to 15. Shortly after 1200, condition changing and lost an important part of its possession abroad. The nobility gradually constituted their continent states. This led to feeling of rivalry that developed between the two countries. An anti-foreign movement in England culminated in 100 Years' War. During the century and a half following the Norman conquest, French had been not only natural but also more or less necessary to English upper class. तो इन ओपनिंग लाइंस में जो बताना चाह रहा है कि जो मेन लाइन है इसमें बताना चाह रहा है कि नॉर्मंडे जो सिविल वार हुई 100 ईयर वार हुई उसमें नॉर्मन ने कन्क्वेस्ट किया। उस वक़्त फ्रेंच ना सिर्फ उसका यूज़ होने लगा बल्कि वहाँ के जो अपर क्लास लोग थे, वहाँ के जो बड़ी बड़ी फैमिलीज़ थी, उन जिनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा था, उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। However, in the 13th and 14th century maintained by communication for time a certain new factor helped it to hold the ground socially and officially. Manual social and economic change affecting the English speaking part of population were taking place. In the 14th century, English won its back into several use and the 15th century French totally disappeared. तो एंडिंग लाइन में ये बताना चाह रहा है कि 15th सेंचुरी में फ्रेंच को शिकस्त हुई और इंग्लिश जीत गई और इंग्लिश का वहाँ राज होने लगा। उसके बाद लॉस ऑफ नॉर्मंडे क्या है? द फर्स्ट लिंक इन द चेन बिल्डिंग इंग्लैंड टू कॉन्टिनेंट वाज ब्रोकन इन 1204 व्हेन किंग जॉन लॉस्ट नॉर्मंडे. John married a spy of Anglo-men. As far as the reason of marriage is the concern, he loved her and had certain political advantage in mind. मतलब जो मेन रीज़न थी लॉस ऑफ नॉर्मंडे की व्हेन किंग जॉन लॉस्ट नॉर्मंडे, तो उसकी जॉन की मैरिज विद एंग्लो-मैन है। मतलब वो इसने इसलिए मैरिज की थी कि उसको पसंद थी, उसको से प्यार था, तो इसलिए उसने उससे शादी की। तो इसीलिए नॉर्मंडे को शिकस्त होना शुरू हुई इन वजूहात की बिना पर और आहिस्ता आहिस्ता उसका फ्रेंच का ख़ात्मा होने लगा और इंग्लिश का राज होने लगा। They appealed for redress to common overlord the king France. In this entire context, Philip saw an opportunity and summoned John to appear before his court as Paris. However, John said as the king of England was not subject to the jurisdiction of the French court. This was point of contention. On the day of trial, the English king did not appear in the court, and the court declared his territory confiscated. Philip proceeded. इसमें वो तकरीबन हिस्ट्री बताना चाह रहा है कि नॉर्मंडे को लॉस क्यों हुआ, ये वजूहात क्या थी कि नॉर्मंडे के लॉस की। कहता है what was the impact of loss on Normandy? In fact, as far as English language concerned, it was advantages for English. Now English emerged as a first concern. England was on the way of becoming not merely geography but once more nation. Nobilities and French reinforcement. Loss of Normandy had certain consequence. जब नॉर्मंडे को लॉस हुआ तो उसके consequence, उसका रद्द अमल क्या था? It brought the head question of whether many of the nobility on their alliance to England to France after Norman conquest, a large number held hands in both countries, a kind of interlocking aristocracy existed. It might be difficult for some English nobility to say whether they belong more to England or the country. Some steps towards separation of their interest been taken from time. On several occasions, everyone confiscated to English state of unruly bones. इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि जब नॉर्मंडे को लॉस हुआ, मतलब उसकी हुकूमत चली गई, तो उसके काफ़ी कंसीक्वेंस पड़े इंग्लैंड पे और
उसके हेनरी वन था, उसने काफ़ी स्ट्रगल की इस लिहाज से कि उसने शादी की थी। उसके बाद ये कहना चाह रहे, दिस वाज द ड्रेस ऑफ किंग ऑफ फ्रांस, ही सर्टेड एज इट इज पॉसिबल दैट एनी मैन लिविंग किंगडम एंड हैविंग पोजेशन इंग्लैंड कैन competently serve two masters. He must either inseparably attach himself the king of England. So people had relinquished their properties either in England or in France. The king ordered that all people of French nations and especially Normans who had possession in England should be dispossessed of them. After 1250 there was no reason for nobility English consider. मतलब इसमें भी वही चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है। उसके बाद फ्रेंच री इन्फोर्समेंट, फ्रेंच की दोबारा री इन्फोर्समेंट कैसे हुई। दिस वॉज द टाइम ऑफ फॉरेन इन्वेजन, दिस इज व्हेन द कंट्री एक्सपीरियंस फ्रेश इन्वेजन ऑफ फॉरनर, दिस टाइम मोस्टली फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस। In short, the course of Henry III long region, the country was eaten by the stranger. Even London was full overflowing. Not only the Poitevins, Roman and Provengals, but Spaniards who did great injury to English. Thus, French Revolution took place. इसमें भी वो इंग्लिश लोगों की बता रहा है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन का दोबारा आगाज़ कैसे हो गया, किन वजूहात की बिना पर फ्रेंच का दोबारा आगाज़ हुआ। उसने ये कुछ चीज़ें डिस्कस की हैं। उसके बाद इंग्लिश फ्रेंच इन 13th सेंचुरीज, मतलब इंग्लिश और फ्रेंच जो 13th सेंचुरी में थी वो क्या थी। The 13th century must be viewed as a period of shifting emphasis upon two languages spoken in England. The upper class continued for the most part of speak French as they had done in the previous century, but the reason for doing so were not the same. Shift to of French from mother tongue inherited from Norman ancestors to cultivate tongue took place. It was supported by social customs and businesses and administration commerce. इसमें ये कहना चाह रहा है कि क्योंकि तब फ्रेंच का राज था, फ्रांस के लोगों का राज था, तो इसीलिए उनकी शिफ्टिंग होना शुरू होगी आहिस्ता आहिस्ता, मतलब फ़्रेंच से इंग्लिश में, और लोग अपनी असल ज़बान की तरफ मुड़ना शुरू हो गए, मतलब इंग्लिश की तरफ आना शुरू हो गए, क्योंकि इंग्लिश उनकी मदर टंग थी। इसीलिए जब दूसरे लोग उस एरिया में आए तो उन्होंने कुछ वजूहात की बिना पर फ़्रेंच को ज़्यादा अहमियत दी, और वहाँ के दो क्लासेस के लोग थे। एक जो लोग थे वो फ्रेंच पे जोर दे रहे थे, अपर क्लास जो लोग थे वो फ्रेंच का यूज़ कर रहे थे, और जो दूसरे लोग थे वो इंग्लिश की तरफ ही मोटिवेट हो रहे थे। मैनी इंग्लिश में स्टडी एडवांस बाय द मिडल ऑफ सेंचुरी व्हेन द सेपरेशन ऑफ the English nobles from their interest in France had been completed. English was become a matter of general use among the upper classes. Adoption of French word into English language took place. There was a shift in literature as well. All that was written in French was not now translated in English. By the close of this century, some children to the nobility spoke English, their mother tongue, had to be taught French through the medium of monomal occupied with English course. The knowledge of French, even of those who attempted to use it in the period, was scarcity. इसमें ये कहना चाह रहा है कि तब इंग्लिश का रुझान बढ़ने लगा, इंग्लिश के बारे में लोगों को अवेयरनेस ज़्यादा होने लगी, और इंग्लिश के जो लोग थे उनका लिविंग स्टैंडर्ड और उनका जो मेयार था वो ज़्यादा होने लगा, और काफ़ी चीज़ें मजबूत होना शुरू होगी इंग्लैंड पॉइंट ऑफ व्यू से। द 100 year war क्या थी। इन द कोर्स ऑफ सेंचुरी फॉलोइंग द कनेक्शन इंग्लैंड विद द कंटिनेंट हैड बीन ब्रोकन, seized by the interest and growing feeling antagonism that culminated for a long period of hostile France. The active interference of France England effort to control the Scotland and Edward finally put, मतलब इसमें वो सारी हिस्ट्री बताना चाह रहा है कि 100 year wars कैसे हुई, और उसमें कौन कौन से कंट्रीज थे, कौन कौन से किंग्स थे, तो ये सारी चीज़ें एंड वाली लाइन में बताना चाह रहा है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर द फ्रेंच वॉज द लैंग्वेज ऑफ एनिमी कंट्री 100 year wars, but is probably to be reckoned as one of the causes contributing the discuss of French। मतलब इसमें भी फ्रेंच के ही बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई, फ्रेंच को
मतलब वहाँ दो लैंग्वेज के बारे में डिस्कशन हो रही थी, इंग्लिश और फ्रेंच। तो वहाँ के अपर क्लास लोग थे वो फ्रेंच यूज़ कर रहे थे, लेकिन लोअर क्लास इंग्लिश की तरफ ही मोटिवेट हो रहे थे। द राइज ऑफ द मिडिल क्लास, राइज होना शुरू होगी मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास में इजाफा होना शुरू हो गया एंग्लो सैक्सन। मतलब जो मिडिल क्लास के लोग थे उन्होंने इंग्लिश का यूज़ करना शुरू कर दिया और इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना शुरू होगी। उसके बाद इम्पैक्ट ऑफ ब्लैक डेथ, ब्लैक डेथ का क्या इम्पैक्ट हुआ मिडल एज में, मिडल इंग्लिश में। जनरल से spirit of discontent prevailed, culminated in the peasant revolt. There was an increase in economic importance of laboring class. There was also an increase in the importance of English language they spoke. This also led to the rise of craftsmen and the merchant class. By had grown up English, England about 200 town the population. London, their town become free self community, electing their own officers. इसमें भी ये बताना चाह रहा है कि ब्लैक डेथ में देवर engaged in the trade in manufacture of each town was independent, wealthy and powerful, standing away from the ruler peasant and the rest of such changes in the social and economic life benefited particularly English speaking part of the population। मतलब इसमें भी ऑलमोस्ट ब्लैक डेथ एक डे था जो सैली ब्लैक डेथ मतलब काफ़ी लोगों की वहाँ डेथ हुई और पॉलिटिकली और सोशली लोगों को बहुत नुकसान मिला और जिसकी वजह से एक दिन रखा गया जिसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। तो वो ब्लैक डेथ में पॉपुलेशन का भी जिक्र है और बहुत सारी चीज़ों को उसने डिस्कस किया। तो आज के लेक्चर में हमने लेसन नंबर 15 को डिस्कस किया कि इंग्लिश की रीइस्टेब्लिशमेंट कैसे हुई, दोबारा इंग्लिश का राज कैसे हुआ, नॉर्मंडे को लॉस कैसे हुआ, 100 ईयर वार्स क्या हुई और लॉस जो हुआ नॉर्मंडे को उसके क्या कंसीक्वेंस थे, और फ्रेंच उसके बाद फिर राइज होना शुरू हो गई और इंग्लिश और फ्रेंच 13वीं सेंचुरी में यूज़ होना शुरू हो गई। उसके बाद 100 ईयर वार का क्या रोल है और ये सारी चीज़ें हमने, उसके बाद ब्लैक डेथ का क्या इम्पैक्ट है, ये सारी चीज़ें शॉर्टली उसने बताने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिडल इंग्लिश 14 एंड 15 सेंचुरी को डिस्कस करेंगे। वो मतलब मिडल एज में 14 सेंचुरी और 15 सेंचुरी क्या रोल अदा करती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस।